اس کی ستائش کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر، عزت اور جلال اسی کا ہے اور اسی کے نام کو تمام تر سجدے روا ہیں۔ اور میں خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو نان بقا یعنی اس مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے اور خاص طور پر خداوند اپنے جلال اور اپنے فضل کی نگاہ میں آپ کو قائم و دائم رکھے۔ خداوند کی شفقت اور اس کی محافظت آپ پر ٹھہری رہے۔ اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ نہایت بزرگ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و برحق اور خداوند جلال کا بادشاہ پروردگار ہے۔ تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ اور قدوس اور برحق ہے۔ اپنے جلال اور اپنے فضل کی روشنی سے ہم سبوں کو آراستہ کر، اور خداوند ہمارے اس خوبصورت دن کے آغاز کو جب ہم تیرے نام سے منسوب کرتے ہیں تو ہماری اس ریاضت کو قبول کر، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف اور اس کی حمد ہو۔ اور آئیے دوستوں مل کر خداوند کے نام کو مبارک کریں اور اپنے دن کا خوبصورت آغاز خوبصورت نام کے وسیلے سے، جو کہ یسوع کا نام، جو کہ یہوہ پاک خدا روح القدس کا نام ہے، آئیے مل کر خدا سالوس کو عزت و جلال دیں اور اسی کی تعریف کریں گے اور بڑا ہی خوبصورت زبور گائیں گے۔ صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، زبور نمبر 118۔ کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ بشک وہی قدوس نام ہے جس کو تمام تر سجدے روا ہے، اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوائر کے جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی وساطت سے ایک اچھی حمد و ثنا ہم تک ہر روز پہنچتی ہے۔ خداوند ان سب کو برکت دے، اور خداوند آپ سب لوگوں کو بھی برکت دے جو اس وقت ہمارے ساتھ اس مارننگ ڈیووشن کا حصہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور دوستو وقت ہے کہ خداوند کے بزرگ کلام کی طرف اپنی توجہ لگائیں، اور آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے عہد جدید میں مقدس پولوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور خداوند کے بزرگ و جلیل کلام میں یوں لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے،
खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सिताइश, तेरी तारीफ करते हैं और खुदा इल्तिजा करते हैं कि तेरा जलाल और तेरा रहम हम सबों पर कायम रहे, ताकि हम खुदा अपनी ज़िंदगी में तुझे इज़्ज़त और जलाल दें और तेरी ही तारीफ करें, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, अभी हमने मुकद्दस पौलुस रसूल के इफसियों के कलीसिया के नाम तहरीर किए गए ख़त के चौथे बाब की 22वीं आयत को सुना, और जिसमें मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो हमें ये बात बयान करते हैं कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। और यहाँ पर मेरे जीजो बड़ी ही अहम बात कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है हकीकत में एक चेंज की बात कर रहे हैं, एक तब्दीली की बात। और जिस वक्त हम तब्दीली की बात करते हैं और मुकद्दस पौलुस रसूल की अपनी ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह में आने से कबल मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो हरगिज़ हलीम, फरोतन और मोहब्बत की रूह से सरशार शख्स का नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा साउल था कि जिसका काम तबाही और बर्बादी पैदा करना है, इंतहाई तुंदखू शख्स। और खुदा का कलाम इस बात की आगाही देता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह में आने से कबल ना तो नरम मिजाज थे और ना ही लोगों से मोहब्बत रखना ही उनका शेवा था। और इसका वाज़ेह सबूत हमें इस बात में दिखाई देता है कि मसीहियों की मुखालफत इस कदर उनके दिल में भरी हुई थी कि दमिश्क की राह को चले जाते हैं ताकि मसीहियों के कत्ल का परवाना ले सकें और मसीहियों को सरेआम कत्ल कर सकें। लेकिन जिस वक्त वो दमिश्क की राह पर हैं और तभी बादशाहों के बादशाह के साथ उनका इनकाउंटर होता है, और फिर बादशाहों के बादशाह की ज़बान से एक गिला सादर होता है कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। और दोस्तों, कौन है कि जिसमें यहूदा के कबीले के बब्बर के सामने खड़े होने की ताब हो? कौन है जो उस बादशाहों के बादशाह को जवाब दे हो सके? यकीनन कोई नहीं। और तभी मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी जो है, जो कल तक साउल थे, तब्दील होकर पौलुस में कन्वर्ट होती है। और मुकद्दस पौलुस रसूल की कन्वर्जन होते हुए हम देखते हैं जिंदगी में तब्दीली आती है, जिंदगी में बहाली रूनुमा होती है। और जिस वक्त जिंदगी में तब्दीली आती है और जिंदगी यकसा कन्वर्ट होती है, तो फिर जब गलतियों के नाम तहरीर किए गए खत में वो कलीसिया से बात करते हैं, कलीसिया को तालीम देते हैं, तो वो तुंदखू और सख्त मिजाज साउल जो था जब पौलुस में तब्दील होता है तो प्याम क्या है कि प्याम है मोहब्बत, सलामती, अमन, प्यार, शफकत, हलीमी, फरोतनी और दोस्तों परहेजगारी का। और अगर आप गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के तहरीर किए गए खत के 5वें बाब को देखें और उसकी 22वीं आयत को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि रूह के फल जो हैं उनका बयान करते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल, जो कल तक एक तुंदखू शख्स है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलता है, जब खुदावंद के साथ इनकाउंटर हुआ है, जब जिंदगी में कन्वर्जन हुई है, जब जिंदगी में तब्दीली रूनुमा हुई है, तो फिर प्याम क्या है कि आपस में मोहब्बत रखो, जिस्म के कामों से किनारा करो और क्या करो कि रूह के फल से बढ़ते चले जाओ, रूह के फल से मामूर होते चले जाओ। हलीमी, फरोतनी, आजी, इनकसारी और परहेजगारी को अपनाओ। और मेरे दोस्तों, बैन उसी तरह आज बहैसियत इंसान हमारी नेचर में भी ये सब चीज़ें उत्तम दर्जे पर मौजूद रहती हैं। मसलन कि आज हमारी जिंदगियों में भी एक हट दर्मी या जिद या तकब्बुर या घुमंड ज़रूर कहीं ना कहीं दुबका बैठा होता है, जो वक्त आने पर अचानक से इस तरह खुलकर सामने आता है कि जिसका कभी हमें शायद शायबा भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी वही खुदावंद के पसंदीदा और वही मंजूर नजर है कि जिस जिंदगी में तब्दीली रूनुमा हुई है, जो दिल तब्दील हुआ है,
जिस दिल के अंदर कन्वर्जन का अमल ठहरा है, जिंदगी भी वही मंजूर नजर है खुदा की। और आज जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखिए कि आज जो हमारी जिंदगियों का हाल है कि हमारी जिंदगियां भी कई दफा बहुत सारा तकब्बुर और घमंड और हठ धर्मी जो है अपने अंदर अपनाए होती है। एक अनजानी सी जिद होती है, वो ये काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, वो ऐसे बोल रहा है तो मैं ऐसे क्यों ना बोलूं, और इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सीख सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हकीकत में खुदावन के बुजुर्ग कलाम की रूह से हमें इस बात का इंदिया दे रहे हैं मुकद्दस पौलुस, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को अब उतार डालना है और अब हमारे अंदर भी पौलुस की तरह कन्वर्जन का अमल होना चाहिए। और याद रहे कि जिस वक्त मुकद्दस पौलुस रसूल हमें ये बात बयान करते हैं तो यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज, वो डायलॉग्स जो निकोदेमस के साथ होते हैं वो भी याद करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस से क्या कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और दोस्तों, उस वक्त तो निकोदेमस यीशु मसीह के इन बातों को और इन डायलॉग्स को समझ ना पाया और वो पूछता है कि क्या अब मैं फिर से अपनी माँ के पेट में जाऊं और फिर से नए सिरे से पैदा हूं तो मेरी नई पैदाइश होगी। लेकिन खुदावंद ने उसको कहा कि तू शरअ का मुअल्लिम होकर ये भी नहीं जानता और ये भी नहीं समझता। और दोस्तों, लेकिन आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और उसके कलाम की रोशनी में एटलीस्ट हम इस बात को समझते हैं कि नया मखलूक क्या है और हमें आज नया मखलूक बनने की जरूरत है। बेशक जिस्म के काम जो कि हसद, बुग़्ज़, घमंड, तकब्बुर, नफरत, शहवत परस्ती और दीगर बुराइयां हैं, उनको आज अपने ऊपर से उतार फेंकने की जरूरत है और रूह के फल से अपने आप को शेर करते जाने की जरूरत है। तभी जिंदगी में कन्वर्जन होगी, तभी जिंदगी में तब्दीली होगी, तभी दिल और सोच तब्दील होगी, तभी जहन के ख्यालात जो कि पुरानी इंसानियत के साथ अटे पड़े हैं तभी उनकी भी तस्हीह मुमकिन होगी। और आज मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त हम नया मखलूक बनते हैं तो वो तमाम तर हसद, बुग़्ज़, घमंड, तकब्बुर, नफरत की जो जंजीरें हैं वो रूह कुद्स की तहरीक के वसीले से चिकनाचूर होती हैं और खुदावंद उस शख्स को नए सिरे से बहाल करते हुए नई मखलूक बनाते हैं। और जो नई मखलूक है, जो बॉर्न अगेन है, जो कन्वर्ट हो चुका, जिसकी कन्वर्जन का अमल हो चुका, मेरे दोस्तों, हकीकत में जिंदगी भी उसी की पसंदीदा ठहरी है, मुबारक भी वही है। आज मेरी आप सब लोगों से ये अपील है कि जितने भाई और बहनें, जितने बेटे और बेटियां, जितने बुजुर्ग, जितने कान, जितनी आंखें मेरी आवाज को सुनती और मुझे देखती हैं, और याद रखें कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि हर शख्स जो आज के कलाम को सुनता है उसकी जिंदगी में हकीकी कन्वर्जन का अमल ठहरे और खुदा उनके कलाम के वसीले से हम बॉर्न अगेन हों, नई मखलूक बने, नए सिरे से पैदा हों और अपनी पुरानी इंसानियत के चाल चलन को अब उतार डालें और रूह के फल से मामूर होते जाएं। और दोस्तों, इस ख्याल के वसीले से खुदा आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदा अजीम, इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और तेरा फज़ल हमारी ज़िंदगी में कायम व दायम रहे और तेरी शफ़क़त और तेरी बरकत ठहरी रहे। खुदा बाप, अपने करम से और अपने फजल से हम सबों को आरास्ता कर और खुदा बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, अल मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों के साथ होता रहे, आमीन।
اور خدا کی تعریف. اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی, اور مجھے اب اجازت دیجیے. کل پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نیا خیال لے کر حاضر ہوں گا, اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور خدا میں محفوظ رہیں. اور دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.